good morning. Welcome back to your English class. Students, today we are going to start chapter number 11, the story of paper. And as the title suggests, this chapter is all about the paper and the history behind it, that when was the first paper made and who invented the paper. So all the history related to the paper invention we're gonna read and study into this chapter. So let's get into the reading without wasting any time. First of all, we have new words of English. You have to read them and learn them and try to utilize them in your English speaking. Spoiling. The first word is spoiling. Spoiling means to destroy, नष्ट करना या बर्बाद करना. Manner. Manner means way of doing things या तरीका. Thousand means हजार. Chinese. As you know, Chinese people, चाइना के लोगों को चाइनीज बोलते हैं. ड्रेंच्ड मीन्स फुल कवर्ड विथ वाटर, भी पूरी तरीके से भीगा हुआ. रॉटन. रॉटन मीन्स डिकेड मटेरियल, मीन्स कोई सड़ी हुई चीज. मिक्सचर मीन्स मिंगल्ड. रैग्स, द ओल्ड और टॉर्न क्लोथ्स लाइक फटे चिथड़े. केमिकल्स, रसायन. सक्स मीन्स अंदर अब्जॉर्ब हो जाना या फिर चूस लेना. फिल्टर मीन्स छन करके अलग करना. क्रश्ड मीन्स तोड़ करके उसको मिक्स करना. रोल्ड मीन्स उसको गोल राउंड शेप करके उसको फिनिशिंग देना. ओके, so now we have done with the meaning of new words of English. So let's get into the reading. Gurpreet is writing in her exercise book, but Suman is spoiling her exercise book. So in this the chapter starts with a scene. As you have to imagine in your mind that there is a classroom and there are two girls. The first girl's name is Gurpreet and the second one named as Suman. So what is Gurpreet is doing? क्लास में दो लड़कियां हैं. पहली लड़की का नेम है गुरप्रीत and second का नेम है सुमन. What is Gurpreet doing? Gurpreet is writing in her exercise book, but Suman is spoiling her exercise book. Gurpreet अपनी exercise book पे लिख रही होती है, लेकिन सुमन अपनी exercise book को spoil कर रही होती है, destroy कर रही होती है. Means she was tearing up her exercise book's pages. So at that moment, Gurpreet said, "Suman, don't waste the paper. Do you know how costly it is?" Costly means expensive, महंगा. So because Suman was spoiling her exercise book, so seeing that, Gurpreet got worried about the paper and she asked her that, "Don't do that. Don't waste the paper. Do you know how costly it is?" Gurpreet सुमन से कहती है कि सुमन, पेपर को वेस्ट करना बंद करो, तुम्हें पता है ये कितने महंगे हैं. सुमन सेज, "Oh yes, but it is mine. I can use it in whichever manner." सुमन इस पे बहुत ही रूडली आंसर करती है कि हाँ मुझे पता है और ये पेपर मेरे हैं, तो मेरा जैसा दिल चाहेगा जिस भी तरीके से मैं इसको यूज करूं. At that, Gurpreet again said, "Suman, you are right, but you should not waste it." सुमन इस पे कहती है, "Yes, you are right, तुम सही हो, लेकिन तुम्हें इसको वेस्ट या बर्बाद नहीं करना चाहिए." Do you know what our ancestor used to write on? वो उससे दोबारा पूछती है. Ancestors means forefather, जो पूर्वज थे हमारे. तो वो उससे पूछती है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे जो फोरफादर्स थे, जो पूर्वज थे, वो किस पे लिखा करते थे? Then Suman said, "Yes, they also used to write on papers." सुमन बहुत ही कैजुअली आंसर करती है कि हाँ वो भी हमारी तरह पेपर्स पे ही लिखा करते थे. Then Gurpreet said, "No, Suman, thousands of years back, when there was no paper, people used to write on leaves of trees and skin of animals." Underline these lines. It could be an answer for any question. So गुरप्रीत सुमन से कहती है कि "नो सुमन, यू आर रॉन्ग. तुम गलत हो. हजारों साल पहले जब पेपर नहीं हुआ करते थे, तब लोग पत्तियों पे या पेड़ों की छालों पे या फिर
एनिमल्स, जो जानवरों की स्किन होती थी उसकी खाल पे लिखा करते थे। द बुक्स वर रेयर एंड एक्सपेंसिव। रेयर मीन्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट, बहुत ही मुश्किलों से मिलना। तो वो उसने बताया कि उस टाइम पे जो बुक्स हुआ करती थी, जो किताबें हुआ करती थी, वो बहुत ही रेयर होती थी, बहुत मुश्किल से मिलती थी और बहुत ही एक्सपेंसिव होती थी, महंगी हुआ करती थी। बिकॉज पेपर वॉज नॉट इजीली अवेलेबल एट दैट टाइम। देन सुमन सेड, देन हाउ डिड चिल्ड्रन यूज टू गेट एजुकेशन। सुमन को इस पे बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहती है तो फिर जो उस टाइम पे बच्चे थे उन्हें शिक्षा कैसे मिलती थी, उन्हें एजुकेशन कैसे मिलता था। Then Gurpreet said, listen Suman, the method of education was quite oral and children used to write on slates and takhtis. Underline these lines, it could be an answer for any question. So Gurpreet told Suman that in older times, पहले के टाइम पे जो एजुकेशन मेथड था वो ज़्यादातर से ओरल हुआ करता था, मीन्स मौखिक हुआ करता था, और जो चिल्ड्रन होते थे उनको लर्न करके ज़्यादातर से सुनाना होता था। ओरली उनको अपनी सारी लर्निंग शो करनी होती थी अपनी टीचर के आगे। और कुछ बच्चों को तख्तीस या स्लेट्स एक बोर्ड होता है लकड़ी का जिस पे लिखा करते हैं चौक से, तो उस टाइम पे बच्चे इन स्लेट्स और तख्तीस का यूज़ करके एजुकेशन लेते थे, पढ़ते थे। Then Suman said, so when was paper made first? Then Suman was very curious to know that when was the first time the paper used. Then Gurpreet told her that it was made about 1000 years ago by the Chinese. Gurpreet उसे बताती है कि आज से करीब 1000 साल पहले चाइनीज लोगों ने, चाइना के रहने वाले लोगों ने पेपर को इन्वेंट किया था, पेपर को बनाया था। Then Suman said, Gurpreet, please tell me how they made it. So now Suman is really excited to know the history behind the paper. तो वो गुरप्रीत से पूछती है कि मुझे डिटेल में बताओ कि सबसे पहले पेपर को कैसे और किसने बनाया। गुरप्रीत told her they made it with rags. उसने बताया कि चाइनीज लोगों ने पेपर को सबसे पहले रैग्स से बनाया। और फर्स्ट ऑफ ऑल रैग्स वर ड्रेंच्ड इन वाटर टू रॉट। उसने बताया कि जो रैग्स होते थे चिथड़े पुराने, उनको पानी में भिगो दिया जाता था पूरे तरीके से। देन द रॉटन मैटर वॉज क्रश्ड एंड स्प्रेड इवनली टू टेक द फॉर्म ऑफ ए शीट। फिर उसने बताया कि जब वो पानी में सड़ जाते थे रैग्स, तो फिर उस रॉटन मीन्स बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाना, सड़ जाना। तो जब वो मटेरियल पूरी तरीके से सड़ जाता था वो रैग्स, तो उसे क्रश करते थे, मीन्स उसे बिल्कुल कूट कर देते, बिल्कुल एक स्प्रेड करके एक इवनली मीन्स बराबर से उसको स्प्रेड करके फैला करके एक शीट के फॉर्म में तैयार करते थे। दिस सुमन सेड, बट नाउअडेज देयर आर लार्ज मिल, पेपर मिल्स। सुमन कहती है कि ये तो पुराने टाइम पे हुआ करता था, लेकिन आजकल पेपर मिल्स है इसके लिए, मीन्स बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पे पेपर तैयार किए जाते हैं। Then Gurpreet says, yes Suman, nowadays the whole work is done by machines in the paper mills. गुरप्रीत कहती है कि यस आई एग्री विथ यू, मैं तुमसे सहमत हूँ कि आजकल जो पेपर बनाए जाते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, मशीन के द्वारा बनाए जाते हैं और पेपर मिल्स होती हैं इसके लिए। देन सुमन सेड, गुरप्रीत कैन यू टेल हाउ ए पेपर मिल वर्क्स। सुमन गुरप्रीत से कहती है कि क्या तुम बता सकती हो कि किस तरह से इन फैक्ट्रीज में, इन मिल्स में पेपर को बनाया जाता है। देन गुरप्रीत सेड, यस सुमन, लिसन, in the paper mills small pieces of wood are drenched in a big tank of water. गुरप्रीत बताती है सुमन को कि अच्छा सुनो जो मैं बता रही हूँ, फैक्ट्री में किस तरह से पेपर बनाया जाता है। सबसे पहले छोटे छोटे लकड़ियों के जो टुकड़े होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, फिर उनको एक बड़े से पानी के टैंक में भिगो दिया जाता है बहुत टाइम के लिए। सम केमिकल्स आर एडेड टू द मिक्सचर, और कुछ केमिकल्स, रसायन पदार्थ उसमें मिलाए जाते हैं उस मिक्सचर में। एंड विद इन अ फ्यू डेज वुड पीसेस गेट रॉटन, और इस केमिकल के वजह से वो जो वुड पीसेस थे, जो लकड़ी के टुकड़े हुआ करते हैं, वो सड़ना स्टार्ट कर देते हैं, रॉट होना स्टार्ट कर देते हैं। देन द होल मैटर
is passed into a machine to be made into a paste। और इस तरह से वो जो पूरा मटेरियल होता है वो मशीन के द्वारा एक पेस्ट में बदल दिया जाता है। लाइक अब किसी चीज़ को अगर आप विस्क करते हो तो वो पेस्ट के फॉर्म में बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो उसी तरह से ये जो अब रॉटन मटेरियल है पूरी तरीके से ये सड़ करके उसको अब मशीन के थ्रू एक पेस्ट के फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है। द पेस्ट इज देन पास्ड ओवर ए क्लॉथ फिल्टर। और इस पेस्ट को अब एक क्लॉथ फिल्टर से छन करके अलग कर लिया जाता है। द फिल्टर सक्स द सरप्लस वाटर। सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा वाटर। ये जो फिल्टर होता है मशीन में लगा हुआ होता है, ये सारे जो एक्स्ट्रा पानी जो होता है उसके अंदर वो पूरा सक कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, अच्छे से उसको सक कर लेता है। देन द शेप ऑफ ए लॉन्ग एंड थिक पेपर शीट इज गिवन टू द पेस्ट। और इस तरह से इस मटेरियल को, इस पेस्ट को एक थिक पेपर शीट के फॉर्म में तैयार कर लिया जाता है। उसको इस तरह का एक शीट जो आप खरीदते हो ज़्यादातर से बाहर, जो आपकी कॉपी में शीट लगा हुआ होता है, उसी फॉर्म में इसको रेडी कर लिया जाता है। द लॉन्ग एंड थिक पेपर शीट इज देन रोल्ड बाय रोलर्स टू प्रिपेयर द पेपर। अब इस लॉन्ग थिक पेपर शीट को रोलर से निकाला जाता है। रोलर्स के अंदर इसको डाल करके उसकी फिनिशिंग दी जाती है ताकि उसमें शाइनिंग आ जाए और जितनी भी अगर जो भी अनइवन डॉट्स हैं या कुछ भी हैं तो वो इवन हो जाए। लाइक इसको फाइनल टच रोलर से दिया जाता है फिनिशिंग के लिए। आफ्टर पासिंग दो स्मूथिंग रूलर्स इट बिकम्स रेडी फॉर यूज। और इस रोलर से गुजर करके ये शीट जो होती है पेपर शीट वो बिल्कुल रेडी हो जाती है यूज करने के लिए। मीन्स उनको फाइनल टच इन रोलर्स के थ्रू दिया जाता है। सुमन, थैंक यू वेरी मच गुरप्रीत, नाउ इट इज टाइम टू गो होम, गुड बाय। और ये सारी बातें सुनने के बाद सुमन उसको थैंक्स बोलती है गुरप्रीत को और कहती है कि अब घर जाने का टाइम है, गुड बाय। गुरप्रीत ऑल्सो ग्रीटेड हर एंड सेड गुड बाय सुमन। गुरप्रीत उसको भी गुड बाय बोलती है। सो इन दिस वे नाउ you have the knowledge that who invent the paper and how the paper is being made into a paper mill or in a large factories. I hope you have enjoyed the chapter. I'll see you next class. Thank you.